Well, while the statement is being distributed, and now that we have this musical interlude up there, and the musical interlude and other interventions are over, let me share with you, friends, that I'm afraid this white paper is in reality almost a non-paper. It's really rather like a bikini because it conceals all the essentials and exposes only the non-essentials. The statement would explain everything to you because it fails to communicate to our concerned citizens answers to such questions as have been troubling the country. Principal amongst the lacuna and the glaring shortcomings are, firstly, the quantum of black money. The Honorable Finance Minister at the very beginning in his prefatory remarks has said that in the absence of some reports that he is expecting, perhaps by the end of the year, the magnitude of black money has not been possible for him to share that with the country. Thereafter, the shortcoming includes there is no reliable quantification of illegal money that's held abroad. And to elaborate this, I have attached, and I have annexed a quote from the report itself, which is part of the documents that have been shared. Now, you will observe, if you go to the annexure, that one estimate of the amount Indian deposits in Swiss banks located in Switzerland, that is, which has been made by the Swiss National Bank. Its spokesperson stated that at the end of 2010, the total liabilities of Swiss banks towards India were 1.945 billion Swiss francs, which is about 9,295 crores. The Swiss Ministry of External Affairs confirmed these figures when a reference was made by the Indian Ministry of External Affairs to them. Since the information was publicly available on the website, the Swiss National Bank, the figures of earlier years were also taken and are tabulated. From this table, it is seen that the bank deposits of Indians in Swiss banks have decreased from rupees 23,373 crore in 2006 to 9,295 crore in 2010, which is about 14,000 crores were withdrawn or shifted elsewhere. I would like to know as to why the government has not shared where this money has gone. Has it come back to India, or has it been deposited elsewhere outside of Switzerland or another tax haven? The report, unfortunately, is sadly remiss in not explaining to us the steps taken by the government for the repatriation of the funds that are now disclosed and admitted despite public outcry on this issue. And of course, the names of the accounts and the account holders illegally holding money abroad are also not shared
in the report. Another shortcoming is that this document does not explicitly state the creation of illegal or black money through arms and armament procurement and trade by government. Secondly, generation of black money on account of unreasonable stamp duty levies, particularly on land transactions. And thirdly, the creation of an environment of criminality by corrupt politicians and politics. This is a disappointing document, a missed opportunity for taking that first step towards cleansing the country's public life and generating new vigor in our economy. That is why at the very beginning I had said that I really like to, it is like this white paper is like a bikini which conceals the interesting and the essentials and reveals only the non-essentials. That is why it's really almost a non-paper. यही चीज़ मैं आपको कहें तो हिंदी में कह दूं कि ये जो आज सरकार द्वारा एक श्वेत पत्र लोकसभा में प्रेषित किया गया है, ये बहुत ही निराशाजनक डॉक्यूमेंट है, संतोषजनक बिल्कुल नहीं है। जैसा मैंने अंग्रेजी में कहा, ये अपने आप में उस वेशभूषा की तरह है जिसे बिकिनी कहते हैं। जो आवश्यक हैं वो छिपा ली जाती हैं और जो अनावश्यक हैं उनको आप आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें कई कमियां हैं, उन कमियों का उल्लेख किया गया है। कितना ब्लैक मनी जनरेट होता है, स्वयं वित्त मंत्री साहब ने फरमाया है कि मैं ये इसका आकलन इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि जो मैंने 3 जांच इस पर शुरू करी है उनकी रपट मुझे मिली नहीं है। शायद इस वर्ष के अंत तक मिल जाए, तब जाके हमको फिर से ये इसके बारे में कुछ जानकारी मिलेगी। मित्रों, इस पर 2-3 बार पहली बार भी प्रयत्न हो चुके हैं, कर्नाट से हुआ है, अन्य लोगों ने किया है, उनका उल्लेख है इस रपट में, पर उससे हमको कुछ मिलता नहीं है। इसके साथ कोई क्वांटिफिकेशन, कोई गणित नहीं बताया गया है कि बाहर कितना पैसा है जो गैर कानूनी तरीके से रखा गया। उसमें रपट में एक जगह कहा गया है कि 2006 में वो जो कुल रकम थी बाहर जिसका स्विट्जरलैंड से हमको अनुमान मिला था वह करीब 23,373 करोड़ रुपया थी और ये 2006 में थी और 2010 में ये 9,295 करोड़ रह गई। तो स्वाभाविक है कि प्रश्न उठता है कि करीब ये 14,000 करोड़ रुपया 4 साल में कहाँ चला गया। सरकार इस पर कोई रोशनी नहीं डाल रही, रपट में कुछ नहीं है। इसीलिए प्रश्न उठता है कि क्या ये पैसा वापस भारत में आया, क्या ये अन्य स्थानों पर गया, अन्य जो ऐसी जगहें हैं जहाँ टैक्स की छूट रहती है वहाँ गया। जब तक सरकार इन बातों का स्पष्टीकरण नहीं करेगी ये संतोषजनक नहीं रहेगा। इसके साथ साथ सरकार ने वो कौन से कदम उठाए हैं ताकि ये पैसा वापस लाया जा सके, उसमें सरकार ने अपनी कुछ असमर्थता इस रपट में जाहिर की है कि अपने आप में एक तरफा कदम उठाने से सरकार कुछ हासिल नहीं कर सकेगी। हमको दूसरी सरकारों के साथ मिल करके ये करना है। अब इसमें न्योते की ज़रूरत नहीं है, न वित्त मंत्री जी को न्योते की ज़रूरत है, न सरकार को। जिन जिन सरकारों के साथ मिलकर ये काम करना है वो क्यों नहीं किया जा रहा है। साथ ही इसमें उन अकाउंट और जो खातेदार और खातेदारों के खातों के और खातेदारों के नाम
जो बाहर पैसा जमा किए हुए हैं उनका कोई उल्लेख नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है, उपरांत कॉन्फिडेंशियलिटी की कई बातें ऐसी हैं जो अब खुले रूप से इंटरनेट पर और जो बन रही हैं। और जब वाइट पेपर दिया जा रहा है, श्वेत पत्र, जिसका अभिप्राय यही होता है कि तो क्या कहते हैं भाई शाहनवाज, सच झूठ, उसको झूठ को झूठ और सफ़ेद को सफ़ेद और काले को काला, इसीलिए वाइट पेपर कहा गया है। इसमें तो साफ पानी ही पानी है, दूध तो है नहीं। शाहनवाज भी क्या दूध। तो जब श्वेत पत्र आया है, सफ़ेद पत्र लाया गया है काले धन के बारे में, तो काला ही काला सब हो तो उसमें फिर पानी ही पानी कहना पड़ता है। इसमें जो अन्य कमियां मेरे विचार में हैं, एक तो जो ये हथियारों के सौदे में जो गैर कानूनी और ब्लैक मनी उपजता है, उसमें इसका उल्लेख ही नहीं है। दूसरा, जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी, काला धन जिसे कहते हैं, बस रुपया काला नहीं होता हो, रुपये का तो वही। ये मेरा विचार है। ये पिछली बार सरकार ने हमने प्रयत्न किया था, जरूरत से ज़्यादा स्टैंप ड्यूटी खास करके ज़मीन के ट्रांसफ़र के सौदों पर होने से लोग छुपाते हैं। सौदा कितने का हुआ, 100 रुपये का सौदा हो और उसमें 25% आप स्टैंप ड्यूटी लगाएंगे तो लगता है लाजमी है, फिर आगे इंसान कहेगा भाई 50 रुपये का कर लो, तुम 50 रुपया ऊपर का रख लो। अभी हमको कोई बताता है कि आजकल ज़मीन के सौदे में 60-40 है, ऐसा कोई नहीं है। उसे ये ब्लैक मनी पैदा करने का स्टैंप ड्यूटी, गैर वाजिब स्टैंप ड्यूटी एक तरीका है। और एक वातावरण ऐसा पैदा हो जाए देश में जिसमें भ्रष्ट राजनीति के कारण ब्लैक मनी पैदा करने से कोई नुकसान नहीं होता। इसीलिए मैंने कहा कि ये अपने आप में निराशाजनक डॉक्यूमेंट है। एक अवसर था सरकार के सामने कि वो पहला कदम ऐसा उठाए जिससे हमारी राजनीति की सफाई की शुरुआत हो, तो उसने पहला कदम सही नहीं उठाया। इसीलिए मैंने इसे संज्ञा दी। ये भाई वाइट पेपर नहीं लगता, ये तो नॉन पेपर सा है और अपने आप में उस वेशभूषा के समान है जिसे अंग्रेजी में बिकिनी कहते हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको छुपा लेती है और जो गैर ज़रूरी है उनको खोल देती है।